بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم خواب کا عذاب کہانی کے پارٹ 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سیاحت کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ یہ پہلو بھی قابل غور تو ہے، شام کو پھر اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ابھی مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے اور سنو، آج کا دن اپنی فرینڈز کے ساتھ انجوائمنٹ میں گزارنا۔ وہ اسے وش کرتے ہوئے چلے گئے۔ اس نے اپنے والد کی نصیحت پر 100% عمل کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شام کو وہ بالکل فریش اور مسرور تھی۔ نمیر اور پاپا نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پہلے کسی مناسب آدمی سے جو عالم بھی ہو اس خواب کی تعبیر معلوم کی جائے، پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے کہ ریجا کو دوبارہ یہ خواب نظر نہ آئے۔ رات کو پھر وہی منحوس خواب نظر آیا۔ اس بار ایک خوبصورت نوجوان نے اس منحوس بدروح سے ریجا کو بچایا تھا۔ وہ ایک دیوار کی طرح سامنے آ گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی تھی، جیسے اب ان دونوں کا مقابلہ ہونا ہو۔ اب یقیناً وہ بلا اس نوجوان کو مار دے گی اور کل پھر میری باری ہوگی۔ شاید خواب کے ذریعے مجھے یہ بتایا جاتا ہو کہ اب اس بلا کے ہاتھوں میری موت یقینی ہے اور میری وجہ سے کوئی اور بھی مرے گا۔ کیا میں مر جاؤں گی؟ یہ ایک ایسی سوچ تھی جس سے ریجا پر کپ کپی طاری ہو گئی کہ وہ لمحہ لمحہ موت کے قریب تر ہوتی جا رہی تھی اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کمرے کی ہر چیز پر اسرار اور ڈرونی لگ رہی تھی۔ ہولے ہولے کبھی سرسراتے ہوئے پردے بدروحوں سے مشابہ لگ رہے تھے۔ فوراً اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی پشت پر دیکھا تو بے اختیار اس کی چیخ نکل گئی۔ خون کی لمبی سی لکیر بنی ہوئی تھی، جہاں پر پہلے صرف کیل کا نشان ہوتا تھا اب وہاں سے خون رس رہا تھا۔ ماما لائٹ آن کرتے ہوئے فوراً اس کے پاس پہنچ گئی۔ کیا ہوا ریجا؟ ریجا ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ ماما وہ وحشی بلا مجھے مار دے گی۔ یہ دیکھیے، اس نے اپنا ہاتھ دکھایا۔ جانو، یہ تو صرف ہلکی سی رگڑ ہے، اتنا خوفزدہ ہونے کی کیا بات ہے؟ انہوں نے اسے تسلی دی۔ کل کو جب میں مر جاؤں گی تو پھر بھی یہی کہیے گا کہ ریجا تو صرف مر گئی ہے اور تو کچھ نہیں ہوا۔ اس نے خفگی سے کہا۔ کیا ہوا؟ پاپا بھی گاؤن درست کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ پھر وہی خواب پاپا، ایک دن یہی خواب میری جان لے لے گا۔ وہ بے بسی سے رونے لگی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے اور بہت سے دلاسے بھی دیتے رہے کہ کل کچھ نہ کچھ ضرور کیا جائے گا۔ ماما اسے اپنے کمرے میں لے آئی، اس کا ہاتھ صاف کر کے پٹی باندھ دی۔ ماں کے کشادہ پلو میں لیٹے ہوئے اسے کتنے سکون اور تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ ہر خوف اس سے دور ہو گیا تھا۔ بے شک ماں کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اس نے خدا کا دل سے شکریہ ادا کیا کہ اس کے پاس یہ نعمت موجود ہے۔ ریجا ریجا، انہوں نے پیار سے پکارا۔ صبح رافع کے ممی ڈیڈی آئے تھے، بہت اصرار کر رہے تھے کہ اسی مہینے کی ڈیٹ دے دی جائے۔ مجھے یہ سوچ کر فکر ہو رہی ہے کہ جب وہ سنیں گی کہ تم ابھی تک خواب سے ڈر جاتی ہو تو کیا ری ایکشن ہوگا ان کا۔ ریجا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ خاموشی سے ماما کی باتیں سنتی رہی۔ بتاؤ نا پھر کیا جواب دیں ان کو؟ اس نے اپنا چہرہ ان کے سینے میں چھپا لیا۔ انہوں نے شرارت سے اس کے گدگدی کی۔ بتا دو نا، تمہارے ہی مستقبل کا سوال ہے، پھر نہ کہنا کہ میں تو ویسے ہی تمہاری رائے جاننا چاہ رہی تھی، ماما نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ کتنی چلاک ہے ماما، اس نے دل میں سوچا اور اپنے بازو ان کے گلے میں ڈالتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تم نے میری بات سن لی ہے نا رافع؟ یہ تم کیسی غیب دماغی کی باتیں کر رہے ہو؟ کوئی توجہ نہیں دی تم نے میری بات پر؟ ریجا نے ناراضگی سے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تمہارے پاپا مزید 2 سال کا وقت کیوں لینا چاہتے ہیں؟ تمہاری سوئی بس ایک ہی جگہ پر اٹکی ہوئی ہے۔ اگر تم مردوں کے دماغ میں یہ بات نہ ہوتی تو اب تک کتنی منزلیں پالی ہوتی تم لوگوں نے۔ بس جہاں دماغ کی سوئی اٹک گئی، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، تم اپنے اس مسئلے میں ہی الجھے رہو گے۔ میں نے ان سے کہا ہے، بس آئی پرومس، میں تمہیں ماسٹر ضرور کرواؤں گا۔ رافع اپنا مسئلہ لیے بیٹھا تھا۔ رافع، جب میں ہی نہیں رہوں گی تو پھر؟ ریجا روحانی سی ہو گئی۔ نمیر اور پاپا آج کسی جاہل آدمی کو لے کر آئے تھے۔ اس نے تو آتے ہی گھر میں ہر طرف دھواں بھر دیا۔ شکل سے ہی عجیب خبیث آدمی لگ رہا تھا۔ پاپا سے ریکویسٹ کر کے فوراً میں نے اسے چلتا کیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، مجھے تو جوں جوں شام ہونے لگتی ہے، رات کے نام سے ہی خوف آنے لگا ہے۔ اب بھی میرا دل کانپ رہا ہے، نہ جانے کون سی رات میری زندگی کی آخری رات ہو جائے۔ کیا واقعی
रीजा, राफे ने हैरत से पूछा। तुम इतनी खौफजदा हो इस ख्वाब से? रीजा खामोशी से सर झुकाकर नाखून खरोंचने लगी। वो अपनी जगह से उठकर इसके पास आ बैठा। तुम मुझे दोबारा शुरू से सब कुछ बताओ। हूँ ठीक है, इसने पूरी बात सुनने के बाद कहा। आज ऐसा करो कि अपने कमरे में मत सोना। तो कहाँ सो जाऊं? रीजा ने सोचते हुए कहा। हम हाजिर हैं, आपके करीब ही हमारा घर है, इसने शरारत से कहा। इडियट, रीजा ने कप उठाते हुए मसनूई गुस्से से कहा। इसलिए मैंने अपना मसला तुम्हारे साथ शेयर किया था। मेरा मतलब है गेस्ट रूम और कितने कमरे हैं तुम्हारे घर में? या आंटी के कमरे में सिर्फ जगह चेंज करनी है? अच्छा, इससे क्या फायदा होगा? जो भी फायदा होगा सुबह तक नजर आ जाएगा। तुम तनहा ना रहना, हर वक्त किसी न किसी को अपने साथ रखो जब तक ये प्रॉब्लम खत्म ना हो जाए। मैं सुबह आऊंगा या फिर फोन करूंगा। अब ये मसला सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, इसने भरपूर नजरों से इसकी तरफ देखते हुए कहा। चाय तो बनाओ। रीजा फौरन चाय की तरफ मुतवज्जा हो गई और चाय बनाने लगी। शुक्र है मेरा ख्याल भी आया तुम्हें। तुम्हारा ख्याल आया नहीं, मुझे रहता है। अगर मेरा ख्याल रहता है तो वो बहुत खुशी से चहका। रीजा ने फौरन इसके सामने हाथ बांध दिए कि खुदा के लिए इस मसले को भूल जाओ। राफे सुनो, मुझे रात को वो ख्वाब नहीं आया। रीजा बहुत खुश थी, इसलिए सुबह सुबह इसे फोन पर बता दिया और अपने घर के सब लोगों को भी। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि इसकी जान इस मनहूस ख्वाब से छूट गई। कुछ कहोगे नहीं? वो चहकी। क्या कहूँ? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि अपने पापा को समझाओ कि मुझ पर तरस। तो बह राफे, तुम ऐसे आदमी थे तो नहीं, जैसी अब बातें शुरू करती हैं, सारा मूड खराब कर दिया। इसने फोन रख दिया। पता नहीं क्या हो गया है राफे को, जब से मंगनी हुई है बहकी बहकी बातें सूझ रही हैं। पहले तो नजर उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखता था। वो रातें वो मामा के कमरे में सोई हुई थी तो इसे ख्वाब नहीं आया। कल अपने कमरे में सोई थी तो फिर वो ख्वाब दोबारा नजर आ गया। 2 रातें वो मामा के कमरे में सोई थी तो इसे ख्वाब नहीं आया। कल अपने कमरे में सोई थी तो फिर वो ख्वाब दोबारा नजर आ गया था। राफे का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। वो इसी खौफ के मारे बुखलाई फिर रही थी कि अगर आज की रात मामा के कमरे में भी वो ख्वाब नजर आ गया तो वो क्या करेगी? ये मनहूस ख्वाब मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। थोड़े से खटके पर इसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। इसके मिजाज में जंजलाहट सी आ गई थी। राफे और नमीर एक साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। राफे ने एक नजर इस पर डाली। कितनी बुझी हुई सी लग रही थी वो। राफे ने पूरा अहद किया था कि वो कभी रीजा से बात नहीं करेगा, मगर दिल ने कब अक्ल की बात मानी है। वो भी अपने साथ किए वादे पर कायम ना रह सका। क्या हुआ रीजा, तुम्हें इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? वही ख्वाब और अपनी आंखों में बाहर आने वाले आंसुओं को रोकने लगी। राफे ने नमीर की तरफ देखा। यार मैं भी बहुत परेशान हूँ। आमिर लेकर आता हूँ तो इसको ये भगा देती है। पीरों फकीरों पर इसका अकीदा नहीं। कोई चीज सामने हो तो कुछ किया भी जाए। एक ख्वाब के साथ हम क्या कर सकते हैं? हम पूरा दिलासा देते हैं, हिम्मत देते हैं इसको, मगर रीजा का खौफ जूं का तू है कि बस अब मैं मर जाऊंगी। राफे खामोशी से कुछ देर सोचता रहा। रीजा तुम्हारा स्टार क्या है? कैप्री कारण जद्दी, इसने मुख्तसर जवाब दिया। अच्छा तभी तो राफे मुस्कुरा दिया। मुझे तुम्हारे मसले का हल मिल गया है। वो कैसे? ये बात मैं तुम्हें परसों बता दूंगा। नमीर, आज रात हम दोनों ने सारी रात जाकर मुकम्मल तजर्बा करना है और बात की तह तक पहुंचना है। कल तजर्बा होगा और परसों रिजल्ट इंशाल्लाह। अगर रीजा का खौफ दूर हो जाए तो मुझे क्या इतराज है? पापा से भी बात कर लेते हैं। आओ फिर अभी अंकल से बात कर लेते हैं। वो दोनों बातें करते हुए चले गए। रात 1 बजे तक राफे और नमीर बातें करते रहे और म्यूजिक से भी लुत्फ अंदोज होते रहे। फिर वो रीजा के कमरे में बगैर आवाज के दाखिल हुए। पूरे कमरे का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद वो इसके बेड के करीब चेयर्स डालकर बैठ गए। नमीर तो कुछ ही देर में सो गया। राफे बहुत एहतियात से हर चीज का मुआयना कर रहा था। कमरे में इंडोर प्लांट्स की बहुत अच्छी कलेक्शन मौजूद थी। रीजा ने करवट ली। राफे ने फौरन अपनी घड़ी देखी। अभी तो सिर्फ 2 बजे थे। खुदा करे आज वो ख्वाब जरूर नजर आए, वरना मेरी सारी रात का जागना फजूल जाएगा। मैं दुआ की। नींद खुदा की बेमिसाल नेमत है और इसमें करवटें बदलना, जिस्म के अज़ा की मुख्तलिफ हरकत, आँखों की हरकत खुदा की हिकमत के गवाह हैं। राफे कुदरत की ऐसी दीगर नेमतों पर गौर व फिक्र में मसरूफ था कि रीजा के चेहरे पर नींद में मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो फौरन चकन्ना हो गया। इसके चेहरे पर खुशी और सुकून था।
इसने हल्की सी करवट ली और हाथ बेड पर पीछे रखा ही था कि चेहरे पर तकलीफ का एहसास नमूदार हुआ। फिर मुसलसल खौफ नजर आने लगा। सांसें तेज हो गई और चेहरे पर पसीने के कतरे उभरने लगे। फिर वो तड़प कर उठ बैठी। इसका चेहरा खौफ के गहरे साए में लिपटा हुआ था। राफे को इतना करीब देखकर वो मजीद घबरा गई, मगर फिर फौरन ही संभल गई। नमीर भी करीबी चेयर पर सोया हुआ था। दोनों ने एक वक्त घड़ी की तरफ देखा। 3 बज रहे थे। देखा राफे, तुमने कितना तकलीफ दे ख्वाब है ये, और अपने हाथ की पुश्त की तरफ देखकर सिसकने लगी जिस पर कील का वाजिया निशान था। अब ये ख्वाब तुम्हें दोबारा कभी नजर नहीं आएगा। तुम ये कैसे कह सकते हो? सुबह सब बात सामने आ जाएगी। अब सुकून से सो जाओ, राफे ने संजीदगी से कहा। नमीर यार उठो, तुम तो काफी सो लिए। हाँ क्या हुआ? वो हड़बड़ाकर उठा। चलो काम हो गया है, सब कुछ खुलकर सामने आ गया है। क्या सामने आया है? सब्र तो जरा नहीं है। सुबह बता दूंगा, अब तू उठ। और इसे खींचकर खड़ा किया। राफे बता दो ना ये सब क्या राज है? रीजा ने इल्तिजाइया अंदाज में कहा, मगर इसने कोई तवज्जो न दी। वो ये जाहिर करना चाह रहा था कि इसकी तकलीफ इससे देखी नहीं गई, मगर खफा वो अब भी है। शाम को सब अफराद रीजा के कमरे में जमा राफे से बोलने के मुंतजिर थे। इसने इत्मीनान से अपने चाय का कप खत्म किया। ख्वाब हमारे रुझान के सही तर्जमान होते हैं, लेकिन इन्हें समझने के लिए एक फन दरकार होता है। जब आपने अपने दादा का वाकया रीजा को सुनाया तो वो इसके तहत ज़हन में महफूज हो गया। अपने ताई रीजा ने इसको कोई खास अहमियत नहीं दी, मगर वो मौजूद रहा। रीजा का रुझान फूलों, तितलियों और दीगर खूबसूरत चीजों में हमेशा से रहा है। इसके ख्वाब का इब्तदाई हिस्सा इन्हीं चीजों पर मुश्तमिल है। फिर ख्वाब का वो दरख्त जिसके तने पर वुड वर्क किया हुआ है, जहाँ से इसके हाथ में कील चुभती है। रीजा जरा तवज्जो से अपने बेड के सरहाने जरा गौर से देखो। रीजा ने फौरन मुड़कर देखा और हैरान रह गई। मेरा तो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ख्वाब में दरख्त के तने पर था। और कील का मामा ये है। राफे ने एक जगह की तरफ इशारा किया। लकड़ी की पत्ती हल्की सी टूटी हुई थी और नन्ही कील का सड़ा बाहर झांक रहा था। जब तुम नींद में इधर उधर हाथ रखती थी तो हाथ की पुश्त पर ये कील चुभ जाया करती थी। तुम्हारा लाशऊर या छठी हिस्से एक ड्रामाई अंदाज में ख्वाब के जरिए तुम्हें इस बात से आगाह करती। फिर तुम्हारे जहन में छुपा हुआ वो वाकया ख्वाब का दीगर हिस्सा बनता। ख्वाब को तो टूटना ही होता है, तो फिर कभी ठोकर लगने से या किसी और बात पर तुम्हारी आंख खुल जाती थी। सब लोग इंतहाई दिलचस्पी से राफे की तरफ मुतवज्जा थे और तुम पर मौत का खौफ तारी होना तुम्हारे जद्दी बुर्ज के जेरे असल लोगों का तरीख पहलू यही है कि वो मौत से बहुत खौफजदा रहते हैं। वैसे तो हर आदमी मौत का खौफ रखता है, मगर जद्दी अफराद अगर एक बार इस ख्याल की गिरफ्त में आ जाएं तो फिर तुम्हारे जैसा हाल होता है। वो इस ख्याल पर चाहने के बावजूद भी काबू नहीं पा सकते, यहाँ तक कि किसी ठोस शहादत और दलील से इनको कायल किया जाए। हेलो रीजा, क्या ख्याल है? राफे भाई की बातों से कायल हो गई हो ना? नमीर ने इसे मुतवज्जा करते हुए कहा। मगर वो ख्वाब मुझे रात के 3 बजे क्यों आता था? अंकल ने क्योंकि आप सबको वक्त का बहुत पाबंद बनाया है, इसलिए तुम रोज 10 बजे सोती थी, कभी टाइम में तब्दीली नहीं की। 3 बजे तक तकरीबन 5 घंटे की नींद तुम पूरी कर लेती थी। ख्वाब आम तौर पर रात के आखिरी पहर में इसलिए आते हैं कि इंसान की नींद तकरीबन पूरी हो चुकी होती है। ख्वाब आम तौर पर रात के आखिरी पहर में इसलिए आते हैं कि इंसान की नींद तकरीबन आधे घंटे पूरी हो चुकी होती है। सोने के बाद तकरीबन पहली करवट आधे घंटे बाद, जबकि दूसरी में ज्यादा टाइम लगता है। कुदरत ने एक खास निजाम बना रखा है जिसके मुताबिक सोते में हम मखसूस औकात में करवटें बदलते हैं, और तकरीबन 3 बजे के करीब जब तुम करवट बदलने के लिए 7 हाथ सराने रखती थी तो वो कील चुभ जाया करती थी। रीजा मुस्कुरा दी। इतनी सी बात थी और मैं ना जाने क्या समझती रही। थैंक गॉड। मुझे इजाजत है। राफिया उठ खड़ा हुआ। बेटे खाना तो खाकर जाओ, मामा ने प्यार से कहा। नहीं आंटी, असल में मुझे पासपोर्ट के सिलसिले में जाना है, देर हो जाएगी। बैठो यार, पापा ने मुस्कुराते हुए इसके हाथ थाम लिए। चारों न चार इसे बैठना पड़ा। वैसे 5 साल का अरसा भी काफी होता है। मैंने कुछ अच्छा फैसला नहीं किया। क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं क्या कह सकता हूँ अंकल, राफे ने भरपूर संजीदगी से कहा। तुम्हारी मामा तो कह रही थी कि 2 माह बाद तुम जाओगे।
मैं क्या कह सकता हूँ अंकल, राफे ने भरपूर संजीदगी से कहा। तुम्हारी मामा तो कह रही थी कि 2 माह बाद तुम जाओगे, मामा ने पूछा। हाँ मगर जब जाना ही है तो पहले या बाद में क्या फर्क पड़ता है। हाँ मगर जब जाना ही है तो फिर पहले या बाद क्या। आप अगर चाहें तो रीजा के लिए कोई भी बेहतर फैसला कर लीजिएगा, शायद मैं मुस्तकिल ही वहीं रहना पसंद करूं। इतनी नाराजगी, पापा ने हैरत से कहा। बात नाराजगी की नहीं असूल की है। 5 साल स्टडी में लगेंगे, फिर 2 साल वहाँ मैं ब्रेक्सिट भी करना चाहूंगा। बात नाराजगी की नहीं असूल की है। 5 साल स्टडी में लगेंगे, फिर 2 साल ट्रेनिंग भी करना चाहूंगा, तो इतने अरसे किसी को पाबंद रखना मुनासिब नहीं। वो ये कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। सुनो राफे, अपने वालिदैन को भेजना, आके डेट मुंतखिब कर जाएं। पापा ने पीछे से आवाज दी। क्या फरमाया आपने? वो तेजी से पलट आया। पापा ने इसे कान से पकड़ते हुए दोहराया, अपने पेरेंट्स को भेजना, आके तुम्हारी शादी की तारीख तय कर जाएं। राफे भाई, इकबाल ने भी तो ठीक ही फरमाया है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। जो बात आप अपनी जिद और नाराजगी से नहीं मनवा सके, थोड़ी सी जहानत और अच्छे अमल से मनवा ली। नमीर ने मुस्कुराते हुए कहा। राफे भी मुस्कुरा दिया और रीजा की तरफ देखा। इसके होंठों पर भी मुस्कुराहट थी, खुशियों भरी आसूदगी की खूबसूरत मुस्कुराहट। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।